So let's start. Okay. So we are basically going through the Python programs. So today, one point I want to mention is that, so you can write it, execution of a program stops if error occurs in some line. So execution of a program stops if error occurs in some line. So suppose this is my program. Okay, this is my program. This is line first. So we can take a same example like Jaipur is equal to. Okay, so someone pointed out this problem that Jaipur is equal to Pune and why this is giving an error. Okay, so it was a good problem because it is giving me many ways to cover the solution. So let us see, one problem is this. Suppose I write Jaipur is equal to Pune, and if I try to print Pune, if I try to print Jaipur. So basically, because this problem is basically producing an error, okay, this statement, so when I run this program, okay, listen carefully, when I run this program, this is my program, when I run this program or when I execute this program, so basically the first line executes, then second line executes, so all the lines from top to bottom starts running, है ना, ऊपर से नीचे तक एक एक लाइन जो है एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करती है, ठीक है। और अगर जिस लाइन पर एरर आ जाती है ना, फिर उसके बाद जो है प्रोग्राम रन नहीं होता, वहीं पर ही रुक जाता है। तो बिकॉज इन दिस लाइन, बिकॉज पुणे इज अ वेरिएबल, it is not a value because it is not surrounded by quotes. So basically, and I also have not created a variable like Pune, because if I do like this, Pune is equal to something like Ajmer, then it is okay, then this line will not produce an error because I have already created a variable and that variable Pune has the value Ajmer. But suppose if I do not create, if I do not use this line, so basically Pune is a variable but Pune does not have any value because I have not created a variable Pune and I have not given a value to it, है ना। पहले मैं वेरिएबल को क्रिएट करता हूं और फिर जो है वैल्यू उसके अंदर डालता हूं ना। तो देखो कैसे क्रिएट होता है, ऐसे क्रिएट होता है। अगर मैंने लिखा पुणे इज इक्वल टू अजमेर, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक वेरिएबल जो है आपका क्रिएट हो जाता है पुणे, है ना, और उसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूं जयपुर अजमेर। लेकिन यहां पर तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया ही नहीं है। जब मैं ऐसा करता हूं तो एक वेरिएबल क्रिएट होता है, फिर उसके अंदर वैल्यू अजमेर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर मैंने कोई वेरिएबल क्रिएट किया ही नहीं है, उसके अंदर वैल्यू गई नहीं है। सो दिस लाइन बेसिकली प्रोड्यूसेस एन एरर। ओके, सो द एरर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, ट्रेस बैक से जो है आपकी एरर स्टार्ट होगी एंड लॉन्ग लाइन, सम लाइंस आर ओके, सो दोज आर इररिलेवेंट टू यू। ओके, सो दोज लाइंस, सम लाइंस आर रिटन हियर, बेसिकली दे आर हेल्पिंग यू टू ट्रेस बैक योर एरर, कि कहाँ से एरर प्रोड्यूस हुई है ना। तो वो आपके लिए इतना हेल्पफुल नहीं है। यू जस्ट मूव ऑन टू द लास्ट लाइन एंड ऑन द लास्ट लाइन यू विल सी दैट नेम एरर occurs, that name Pune is not defined. After this line will not be run because this line has error, so it will only produce the error, and after this line is not run. So all the subsequent lines will not be run, है ना। अगर किसी लाइन में एरर आ गई तो उसके बाद जितनी भी लाइंस आएगी वो रन नहीं होती है, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। तो जस्ट नोट इट डाउन, टेक ए स्क्रीनशॉट, वी मूव ऑन। तो अब यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा ना, प्रिंट जयपुर जो है नहीं आएगा क्योंकि लाइन रन ही नहीं होगी। पहले वाली लाइन में एरर आ गई, ये रन नहीं होगी तो जयपुर प्रिंट होगा ही नहीं ना। तो ये वाला, ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, फिर ये लाइन, इस लाइन पे बात ही नहीं आएगी क्योंकि यहीं पर ही एरर होगी, यहीं पर ही रुक जाएंगे, ठीक है। चलो okay, let's note down another thing.
ठीक है, प्रिंट फंक्शन देखो ना. सो लेट्स स्टडी अबाउट प्रिंट फंक्शन. ठीक है, so we have used a print function already. Okay, so basically what does a print function do? It takes input, whatever input you give it to, it takes that input and print that to the output screen. Okay, it takes input and print that input to the output screen. Basically we can give a number of inputs to it. We can give an input 1, we can also give input 2, we can also give input 3, है ना. ऐसे हम कई तरह से इसको input दे सकते हैं, कितने भी input दे सकते हैं ना. So basically we can give input 1, we can input 2, input 3 and up to so on. What is the limit? Do not go on to that. Okay, that is beyond the scope. So basically just you remember that you can give any number of inputs. Input 1, input 2, input 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, you can go on. But do not think about the limit. So basically print function is can take any number of inputs और फिर inputs को जो है वो print करता चला जाएगा. So take an example. और in state बेसिकली जो इनपुट होते हैं ना, उसको हम फंक्शन में जो इनपुट होता है उसको हम जनरली आर्ग्यूमेंट बोलते हैं. सो नाउ आई शुड से बेसिकली द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. सो बेसिकली एन इनपुट फंक्शन और दिस अ प्रिंट फंक्शन बेसिकली टेक्स आर्ग्यूमेंट्स. इंस्टेड ऑफ इनपुट आई विल से दैट बेसिकली टेक्स आर्ग्यूमेंट एंड देन इट प्रिंट दैट आर्ग्यूमेंट. ठीक है, सो आई कैन से इनपुट इज ऑल्सो नॉन एज आर्ग्यूमेंट. ठीक है, सो इनपुट्स आर और एन इनपुट इज ऑल्सो नॉन एज एन आर्ग्यूमेंट. ठीक है, इनपुट को हम आर्ग्यूमेंट ही बोलेंगे यहाँ पर. ठीक है, देखो सपोज इफ आई हैव प्रिंट फंक्शन, सो प्रिंट, सपोज आई ट्राई टू प्रिंट ए, सो व्हाट विल बी द आउटपुट? द आउटपुट विल बी ए विदाउट कोट्स. ठीक है, सो बेसिकली आई एम प्रोवाइडिंग ए सिंगल इनपुट. ठीक है, मैं इसमें एक इनपुट दे रहा हूँ, केवल ए. ठीक है, और अगर मैंने ऐसा करा, सपोज इफ आई गिविंग, सो ये भी क्या है, एक ही इनपुट है ना. So single input I am providing. So suppose if I want to give two inputs, अगर मैं दो input देना चाहता हूँ तो basically what should I say? When I pass two arguments. ठीक है, जब अब इस function के अंदर, print function के अंदर अगर मैं दो argument pass करवाऊँ तो क्या होगा? देखो print, so the first argument I can take is A, the second argument I can take is B. So what will be the output? Basically it will print A, then it will print B, है ना. तो ये क्या करेगा? A को print करेगा और फिर B को print कर देगा. But basically when it prints the first input, then it basically adds a space in between and then print the B, है ना. ये क्या करता है कि A को print करेगा, पहला जो आर्ग्यूमेंट है आपका उसको प्रिंट करा, दूसरा आर्ग्यूमेंट है उसको प्रिंट करता है, लेकिन जो उसके बीच में एक स्पेस भी लगाता है ना, एक स्पेस भी होता है उनके बीच में. ठीक है, आपने पहले देखा था, छोड़ो, इनके बीच में क्या होता है, एक स्पेस भी दे देता है. ठीक है, so if I pass two arguments A and B, then basically the print function prints the first arguments, put a space and then prints the second argument. Okay, now suppose if I pass three arguments to it, print A, B and C. So basically I have used comma टू पास मोर इनपुट्स. ठीक है, अगर मेरे को एक से ज्यादा अगर आर्ग्यूमेंट पास करने हैं तो मैं क्या करता हूं, कॉमा का यूज करता हूं. सो बेसिकली कॉमा सेज दैट दिस इज द वन बिफोर द कॉमा इज द फर्स्ट इनपुट एंड द वन आफ्टर द कॉमा इज द सेकंड इनपुट. सो हियर इन दिस केस आल्सो, सो A is the first input, then after I have comma, that means B is the second input, second argument, and then after B I have a comma, then means C is the third argument. Okay, so basically we use commas. ठीक है, हम अगर आपको एक से ज्यादा इनपुट देने या एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स देने तो हम क्या करते हैं, कॉमा लगा लगा के देते हैं ना, ए बी सी इस तरह से कॉमा लगा लगा के दें. सो व्हाट विल बी द आउटपुट? बेसिकली आउटपुट विल बी ए, देन अ स्पेस, बी, देन अगेन अ स्पेस, देन सी. सो आउटपुट विल बी ए बी सी एंड देयर विल बी स्पेसेस इन बिटवीन देम. ओके, so basically it prints A, then it prints a space, then it prints a B, then again it prints a space, then it prints C. So basically it works. So similarly you can goes on. So you can also have four arguments and then it will go like this. For four arguments, suppose I have four arguments A, B, C, D. So it will print A space B space C and then space D. Okay, so it will goes like that. ठीक है, ये इस तरह से जाएगा. It will go like that. Now suppose, so basically all the arguments are separated by comma.
Okay, so whenever I am using a comma, that means another argument starts. ठीक है. Now suppose take a example here. Suppose. So basically arguments can like be this. Suppose I have this type of print. Suppose I have here NBF. Okay, so NBF as a first argument, and then 125 as a second argument, and then I have school 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 as a third argument, and then I can have a floating point number 25.12 as a fourth argument. Okay, so basically now I am passing four arguments to the input function. The first argument is NBF, second is 125, an integer, the third argument is a string, the fourth argument is a floating point number. Basically numbers are of two types. One is an integer number and is a floating point number. We have not studied the floating point number till now. Just focus on the input, the integer numbers. Okay, but we will study further. We will study also about the floating point numbers. But you can remember that numbers are of two types. One is integer and one is the floating point number. So basically I have passed four arguments to this function. Basically all the four are values. I can also pass variables in that. Okay, I can also pass variables inside that. So suppose if I have a variable like name, or if I have a variable Jaipur, that is basically is equal to Ajmer. Okay, so here I can use Ajmer also. Okay, here I can use Jaipur also. Okay, so here Jaipur is a variable, so I can use values also, or I can use variables also. Okay, so basically these are values. So this is a value, this is a value, this is a variable, and this is a value. So basically I can pass either variables or either values into that. Okay, so all these are basically now. So what it will be printed? So print क्या होगा? देखो print क्या होगा? NBF print होगा first, and then it will print a space. Okay, यहाँ पर एक space आएगा, then 125, then again a space will come, then Jaipur will be printed. Okay, then a space will come, and then 25.12 will be printed. So this will be the output of this. Okay, so this will be the output of this print statement. Okay, just note that down, take a screenshot. Yeah, so one thing is that you should remember that whenever I write something, then I can commit some mistake, but you should remember that if I use Jaipur here and J is the capital, J is capital, so everywhere I am using that variable, so the J should be capital. ठीक है, मतलब ये है कि जो कैपिटल लेटर्स है वो कैपिटल ही रहेगा, स्मॉल लेटर है स्मॉल ही रहेगा, इंटरचेंज नहीं कर सकते है ना. सो दिस इज बेसिकली करेक्ट और दिस इज बेसिकली रॉन्ग. सपोज आई हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल जयपुर, JAIPUR. Okay, suppose R is capital, JAIPUR is capital. I have declared a variable Jaipur is equal to, suppose I have given a value NBF. Okay, so Jaipur, I have created a variable Jaipur, so R is capital and the value is NBF, and if I try to print Jaipur, JAIPUR small r, so basically that will produce an error. ठीक है, ये एरर प्रोड्यूस करेगा क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आर है, यहाँ पर स्मॉल आर है. ठीक है, सो बेसिकली द केस मैटर्स है ना, जो आपके केस होते हैं ना, लोअर केस और अपर केस, तो ये केस मैटर्स करता है. आप ऐसा नहीं है कि यहाँ कैपिटल आपने यूज करा है तो यहाँ स्मॉल यूज कर लो. ठीक है, तो आपको वैसा ही करना है. तो अगर मैंने यहाँ पर कैपिटल जे यूज करा है तो यहाँ पर भी मुझे कैपिटल जे ही यूज करना पड़ेगा ना. यहाँ कैपिटल जे है तो यहाँ पर भी कैपिटल जे ही यूज करना पड़ेगा ना. तो ये आपको ध्यान में रखना है. मैं हो सकता है कि प्रोग्राम्स में मिस्टेक कर दूँ ना, मेरे को लिखने में बहुत जोर आता है तो हो सकता है मैं लिखने में गलती कर दूँ ना. लिखने में मेरी वैसे ही राइटिंग बहुत अच्छी है, आपको पता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये तो सबको पता होगा, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो चुका है कि मेरी राइटिंग बहुत खराब है ना. तो हो सकता है ये गलती मैं कर दूं, लेकिन आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो आपने वेरिएबल लिया है वो ही आपको लेना है, उसमें केस चेंज नहीं करना है. अगर किसी भी लेटर का केस अपर है तो अपर यूज करना है, लोअर है तो लोअर, है ना, नहीं तो वो तो अलग वेरिएबल हो जाएंगे ना. ये दोनों अलग वेरिएबल हो गए फिर. ठीक है, ये अलग वेरिएबल हो जाएगा, फिर वो वाला अलग वेरिएबल हो जाएगा, नहीं तो. ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो आप. अब देखो
हाँ, अब देखो कि सपोज, ठीक है, तो यहां पर देखो क्या होता है कि मैंने कहा कि इन द प्रिंट फंक्शन बेसिकली वी हैव, ठीक है, यहां अगर मैंने कुछ कहा कि जैसे प्रिंट फंक्शन है, यहां मैंने कहा कि कोई भी वैल्यू आ सकती है ना यहां पर, जैसे सपोज इफ आई एम पासिंग ओनली वन आर्ग्यूमेंट, ओके, suppose if I am passing only one argument, so any value can come here, like suppose I can write nbf, it is a value, so it will print nbf, or suppose if I write 1 to 5, so it is a value, so it will print 1 to 5, or suppose if I write a variable here like name, and suppose if I declared a name and name is equal to suppose Jaipur, so Jaipur will be printed here, okay. Suppose I have declared a variable name and name is equal to Jaipur, so it will print Jaipur only because the value of variable will be taken here, ठीक है। तो ये जो चलता है ना, अभी मैंने यही एग्जांपल बताया। अब नाउ थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं और हम कहते हैं कि जैसे क्या होता है कि अगर हम प्लस माइनस ही मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं, आउटपुट वो आना चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि अगर आपने कोई स्ट्रिंग ली ए बी, है ना, if you have taken a string AB and then you have taken another string CD, so basically output of this will be ABCD. So this expression, basically this is called an expression, ठीक है, इसको हम expression कहते हैं ना। So basically this expression results a value ABCD, तो यहां पर ये हो जाएगा कि ये फिर एक वैल्यू की तरह काम करेगा। तो देखो, तो हम क्या कर रहे हैं कि सपोज आई एम राइटिंग लाइक दिस, print AB and then I am using a plus operator CD. So basically it is a single argument, okay. Here we are not passing two arguments. When we use comma, that means we are passing two arguments, but here we are only using plus symbol. So basically this is a single argument. So basically what will be the output of this? So basically this statement will be converted to this statement. So basically this is an expression. So first this expression will be evaluated. ये जो है आपका इक्वेशन की तरह लगता होगा आपको, मैथमेटिकल इक्वेशन है ना, तो इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। यहाँ पर ऐसी जो भी चीजें आएंगी ना जिसमें आप मैथमेटिकल जो इक्वेशन टाइप की होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, इस तरह की जो भी आती है, हम यहाँ पर मैथमेटिक्स में उसको इक्वेशन बोलते हैं। जैसे ये आप इसको इक्वेशन बोल सकते हो ना। सर आई हैव नेटवर्क प्रॉब्लम, व्हाट आई डू? बेटा आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, कि आई विल अपलोड दैट वीडियो, सो यू कैन लेटर गो ऑन टू दैट, ठीक है। आप बाद में जो है वीडियो के थ्रू देख सकते हो, क्योंकि फिर और तो कुछ कर नहीं सकते अभी, ठीक है। तो देखो अब ये क्या होता है, ये एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में इक्वेशन बोलते हैं ना इसको, ये एक्सप्रेशन होता है। अब देखो कोई सा भी एक्सप्रेशन होगा तो उसकी कोई वैल्यू आएगी। सो बेसिकली नाउ व्हाट हैपेंस, अगर मैं इस तरह से लिखता हूं तो बेसिकली नाउ इट वर्क्स एज ए सिंगल आर्ग्यूमेंट, it works as a single argument, and this expression is basically evaluated and the result will be ABCD, ठीक है। तो अब क्या है, आपका रिजल्ट जो है ABCD आ जाएगा, और फिर जो है इसका आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, इसका आउटपुट ABCD आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा आपका ABCD, ठीक है। तो बात यह है कि अगर मैं ये प्रिंट फंक्शन कॉल कर रहा हूं कि प्रिंट ABCD, तो क्या होता है, पहले ये वाला एक्सप्रेशन है ये सॉल्व होता है, इसकी वैल्यू आ जाती है ABCD। अब ये केवल एक आर्ग्यूमेंट है ना, आर्ग्यूमेंट तो अभी भी एक था, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट में क्या एक्सप्रेशन दे रखा था मैंने ना, कोई वैल्यू ना देकर मैंने पूरा एक एक्सप्रेशन दे रखा था। तो एक्सप्रेशन तो सॉल्व होकर तो फाइनली एक वैल्यू ही आती ना। जैसे मैथ्स में मैं कुछ भी एक्सप्रेशन लिख दूं, 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 - 2, फाइनली तो इसकी जो वैल्यू तो आएगी ना, ये एक फाइनली तो ये एक वैल्यू ही होती है। तो ये भी क्या है, देखो ये एक एक्सप्रेशन है लेकिन फाइनली इसकी एक वैल्यू आती है। तो पहले ये एक्सप्रेशन सॉल्व होता है, फिर इसकी जो वैल्यू आती है, फिर प्रिंट फंक्शन उस वैल्यू को प्रिंट कर देता है, ठीक है। देखो तो अभी देखो इसको दोबारा देखते हैं एक बार। अरे डस्टर तो काम ही नहीं करते, देखो साफ नहीं दिख रहा क्या बोर्ड? साफ ही नहीं होता। देखो जब भी मैं क्या करता हूं कि जब भी मैंने कहा प्रिंट, I have taken suppose 3 arguments I have taken. The first argument is AB, second argument is a number, third argument is a float 1 to 5, and the fourth argument is again suppose a string. So what it will do, it will basically directly print, okay. जब ये statement आएगा तो ये statement क्या करेगा, when this statement is run, it will directly print, first it will print AB, the first argument, then it will add a space and then it will print second argument, then it will add a space, then it will print third argument, and then it will print
then it will add one more space and then it will print the last argument. Okay, so जो भी आर्ग्यूमेंट्स है, जो भी स्ट्रिंग्स है, उसमें से कोट्स हटाता जाएगा. ए बी में कोट है, इसके कोट हटाया, ए बी प्रिंट कर दिया. 12 में नहीं है, 12 को ऐसे ही कर दिया. फिर स्पेस लगाता जाएगा और लास्ट में जो है एक आपकी जो स्ट्रिंग है इसमें से फिर कोट्स हटाएगा और ये लगा देगा ना. तो ये स्टेटमेंट डायरेक्ट एग्जीक्यूट इस तरह से होता है. लेकिन सपोज अगर मेरा स्टेटमेंट इस तरह से है, प्रिंट, सपोज आई हैव लाइक दिस ए बी and then I have CD, and then I have 2 multiplied by 6, and then I have AB multiplied by 3. ठीक है. अब जैसे ये है तो ये स्टेटमेंट जो है कैसे एग्जीक्यूट होगा ना, देखो को होगा क्या, क्योंकि ये जो है एक पहला आर्ग्यूमेंट है, दिस इज योर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है ना, ये आपका सेकंड आर्ग्यूमेंट एंड दिस इज योर थर्ड आर्ग्यूमेंट. ये जो है आर्ग्यूमेंट एक एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन की तो फाइनली एक वैल्यू आई जाएगी. तो पहले ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, इसकी वैल्यू आएगी. ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, इसकी वैल्यू आएगी. ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, इसकी वैल्यू आएगी. तो देखो कैसे होता है. फिर ये क्या होता है कि अब इसको डायरेक्टली प्रिंट नहीं होता ना. इस केस में तो क्या हो रहा था कि डायरेक्टली, क्योंकि ये वैल्यू थी, ए भी एक वैल्यू है, इसने प्रिंट कर दिया, 12 भी एक वैल्यू है, इसने प्रिंट कर दिया, ये भी वैल्यू है. लेकिन ये जो है आपकी वैल्यूज नहीं है ना, ये जो है आपका प्रिंट की ये जो है ये सब वैल्यूज नहीं है, ये एक्सप्रेशन है. तो पहले एक्सप्रेशन सॉल्व होकर आपकी वैल्यू आएगी और फिर वो वैल्यू प्रिंट होगी, है ना. तो ये जो आपका एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, एक फाइनली एक वैल्यू आ जाएगी. जब वो वैल्यू आ जाएगी तो वो उस वैल्यू को प्रिंट कर देगा. ऐसे इसमें भी करेगा. ये एक एक्सप्रेशन है 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, इसको सॉल्व करेगा, इसकी वैल्यू आएगी 12, फिर वो 12 प्रिंट कर देगा ना. फिर ये एक एक्सप्रेशन है, ये तीसरा आर्ग्यूमेंट है ना, कॉमा के बीच में आएंगे आर्ग्यूमेंट, ये ध्यान में रखना ना. तो कॉमा है इसका मतलब है ये पूरा एक आर्ग्यूमेंट है, फिर ये दूसरा आर्ग्यूमेंट है, ये तीसरा आर्ग्यूमेंट है. ठीक, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये सॉल्व होगा और फिर जो है इसकी वैल्यू प्रिंट होगी. तो देखो ये कैसे होता है. बेसिकली सिंपल वाला केस ले लेते हैं ना. तो सपोज यहाँ पर जो है, या फिर यही ले लो आप, ठीक है. तो अब देखो इसको क्या कहोगा, ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होता है, पहले ब्रेक हो जाता है कहीं स्टेटमेंट, है ना. तो देखो सबसे पहले ये वाला सॉल्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ABCD, है ना, ये हो गया आपका. ठीक है. फिर ये इसको सॉल्व करेगा तो ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा. फिर ये इसको सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, AB और AB. ठीक है. तो पहले ये क्या करेगा, सबको सॉल्व कर लेगा. अब ये सॉल्व हो गया तो अब ये इनको प्रिंट कर देगा. प्रिंट क्या आ जाएगा आपका, ABCD आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका स्पेस, फिर 12, फिर स्पेस, फिर AB और AB. ठीक है. देखो अब तो बेसिकली देखो हमारे पास दो चीजें है ना, कि अगर आपने प्रिंट फंक्शन में इनपुट में आपने आर्ग्यूमेंट में अगर वैल्यू दी है तो वो वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट हो जाती है. लेकिन अगर आपने कोई वैल्यू ना देकर, है ना, जैसे ये वैल्यू दी है AB 12 12, ये सारी वैल्यूज दी है, तो ये डायरेक्टली जो है प्रिंट फंक्शन सबको प्रिंट कर देगा, बीच में स्पेस लगा देगा. लेकिन अगर आपने कोई वैल्यू ना देकर एक्सप्रेशन दे रखे हैं ऐसे, है ना, तो एक्सप्रेशन क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, फाइनली उनकी कोई वैल्यू आती है ना. तो ये क्या करेगा, ये एक्सप्रेशन पहले इवेल्युएट होगा. एक्सप्रेशन जब भी इवेल्युएट बोलते हैं ना, इवेल्युएट एन एक्सप्रेशन, या फिर बोल दो कि ये एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी. ये हमने देखा था, अगर दोनों ऑपरेंड आपके स्ट्रिंग है तो क्या हो जाता है, स्ट्रिंग आपकी ऐड हो जाती है. तो AB प्लस CD क्या हो जाएगा, ABCD हो जाएगा. 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा. ये एक स्ट्रिंग है, ये एक इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, AB आ जाएगी, है ना, एक स्ट्रिंग ऐसे ही हमने देखा था. तो जब ये पूरा सॉल्व हो चुका है, सारे एक्सप्रेशन इसने सॉल्व कर लिए हैं और अब ये तीनों आर्ग्यूमेंट जो है एक वैल्यू आ चुकी है आपके पास, तो अब ये तीनों को प्रिंट कर देगा. ठीक है. इस तरह से जो है आपका प्रिंट फंक्शन वर्क करता है. ठीक है. अब देखो हमारा जो था उस क्वेश्चन में, अगर आपको लास्ट जो हमने क्वेश्चन देखा था, सपोज उसमें हमको ये प्रिंट करना था कि प्रिंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज, है ना, ये हमको प्रिंट करना था, प्रिंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज. और सपोज हम यहां पर प्लस का यूज कर रहे थे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है देखो. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ऊपर वाले का, तो एक बार ऊपर वाले की तो खींच लो फोटो. ठीक है. देखो देखो जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या होता है, देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं. परसेंटेज का ये फॉर्मूला होता है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो होते हैं किसी के भी, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज बेसिकली इज इक्वल टू स्टूडेंट्स मार्क्स. ठीक है. स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करो
और जो पूरे को है आप डिवाइड कर दो टोटल मार्क्स से, ठीक है। ये आपका जो है इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स का। सो बेसिकली वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला हेयर, ठीक है, हम जो है सेम फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमने ये स्ट्रिंग पर प्रिंट कराई परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज प्लस, और फिर हमने जो है ये दूसरा प्रिंट करा दिया आपका स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है, स्टूडेंट मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100 और देन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है, ये कर दिया मैंने, बस देखो। तो अब ये जो है आपका आउटपुट आ जाना चाहिए था ना। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, केवल वो यही प्रिंट करा रहे हैं ना, ये वाला तो प्रिंट करा नहीं रहे। तो अगर ये प्रिंट कराते तो उनको पता चलता कि इसमें कुछ एरर है ना। अब देखो क्या एरर है, देखो एरर ये है कि ये तो आपकी एक वैल्यू हो गई, इसको तो वो यूं की यूं प्रिंट कर देगा, है ना। लेकिन देखो कि ये पूरा एक आर्ग्यूमेंट है ना, दो आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि बीच में हमने प्लस यूज करा हुआ है। तो ये एक आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये पूरा एक आर्ग्यूमेंट है, ये पूरा एक आर्ग्यूमेंट है। ये वाला आपका स्ट्रिंग है, फिर आपका प्लस है, और फिर ये आपका आएगा एक नंबर आएगा ना, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आएगा, तो ये आपका एक नंबर हो जाएगा। और हमने देखा था कि अगर किसी भी स्ट्रिंग के अंदर आप कोई भी नंबर ऐड करते हो तो वो आपको एरर देता है, ठीक है। और यही हम यहां पर कर रहे हैं, हम किसी भी स्ट्रिंग में एक इसका आंसर एक नंबर आएगा, परसेंटेज है ना, 70, 75, 75 वगैरह ऐसा कुछ आंसर आएगा। हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग में एक नंबर ऐड कर रहे हैं, तो वो तो एरर आएगी आएगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्लस की जगह हम कॉमा पास करवा दें। तो देखो ये एक आर्ग्यूमेंट हो गया और ये दूसरा आर्ग्यूमेंट हो गया। अब ये दोनों अलग अलग प्रिंट हो जाएंगे, तो पहले ये सॉल्व हो जाएगा, फिर इसकी जो वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगा। ये तो है ही वैल्यू केवल, इसको तो सॉल्व करना नहीं है। तो ये क्या होगा, देखो आपका जो भी इसका आंसर आएगा, पहले ये वाला प्रिंट हो जाएगा, फिर ये सॉल्व होगा, इसका जो भी आंसर आएगा फिर वो वाला प्रिंट हो जाएगा। तो ये कॉमा लगाएंगे तो वर्क कर जाएगा, क्योंकि अलग अलग आर्ग्यूमेंट हो गए। लेकिन अगर मैं प्लस लगाता हूं तो ये पूरा एक एक्सप्रेशन हो गया। एक्सप्रेशन में मैं क्या कर रहा हूं, स्ट्रिंग में इंटीजर जोड़ रहा हूं, स्ट्रिंग में बेसिकली नंबर जोड़ रहा हूं। तो स्ट्रिंग में कोई भी नंबर जोड़ते हैं तो एरर आती है, ये हम सॉल्व कर ही चुके हैं। तो यहाँ ये गलती कर रहे थे हम ना, तो इसलिए मेरे को कॉमा लगाना पड़ेगा। जब कॉमा लगाऊंगा तो इसको प्रिंट कर देगा, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको सॉल्व करेगा, इसकी वैल्यू आएगी, उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना था इसमें, ठीक है। तो अब ये है दोबारा से इस प्रोग्राम को करना, ये सारी चीज कर करके देखना कि क्या है, ठीक है। तो एक तो चीज हो गई इसमें ये, है ना। दूसरी चीज देखो क्या है इसमें, कि आपको ये है कि देखो फॉर्मूला क्या होता है कि ये जो पार्ट है आपका, ये क्या है, न्यूमरेटर है ना, और ये जो पार्ट है दिस इज नॉन एज डिनोमिनेटर, ठीक है। लेकिन आप जब यहां पर ऐसे लिख रहे हो, स्टूडेंट मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, ठीक है, तो इसमें ये है, जो ये फॉर्मूला तो साफ दिखता है कि ये वाला पार्ट न्यूमरेटर है ना, और ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर है। लेकिन इस तरह से अगर मैं लिखता हूं तो मेरे को साफ दिखाई नहीं देता ना, तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, इसके अराउंड ऐसे कोट्स लगा देने चाहिए, है ना। तो ये मेरे को पता चल गया कि ये वाला पार्ट मेरा न्यूमरेटर है, स्टूडेंट मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज ए न्यूमरेटर। और फिर इस न्यूमरेटर को मैंने डिवाइड कर दिया आपके टोटल मार्क्स से, ठीक है। तो ये आपका डिनोमिनेटर। तो ये अब ये क्या क्लियरली दिख रहा है, और रीडेबिलिटी होना बहुत जरूरी है ना एग्जाम में। अगर मैं इसको लगा हटा के लिखूंगा तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, तो भी बात वही है। लेकिन ऐसे क्या है, ऐसे समझ में अच्छे से आता है, ठीक है। और आपके किसी भी प्रोग्राम में क्या होता है कि रीडेबिलिटी जितनी अच्छी होती है ना, उतना ही अच्छा होता है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह में भी ऐसा ही होता है। जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो ना, तो ये नहीं देखा जाता कि आपका प्रोग्राम आप कैसे कितना काम कर रहा है, क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि वो समझ में आना चाहिए, अगर उसको कोई भी पढ़े तो, ठीक है। तो आप अगर एग्जामिनर पढ़े तो उसे समझ में आना चाहिए। तो आप पैरेंथेसिस हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लगा दोगे तो अच्छा लगेगा, पता चल जाएगा कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है ना। तो ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसका आंसर एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आता है। तो अगर आप जैसे अब यहाँ 75 वगैरह यूज में लोगे तो आ जाएगा आपका आंसर ना, कराई था आपने प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ना। अब आपको क्या करना है कि एक और प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको, ठीक है। तो इसी तरह से ना आप ये यूज करा करो, ताकि फॉर्मूला आपका क्लियरली दिखाई दे कि आप क्या फॉर्मूला लगाना चाह रहे हो, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम आपको करनी है। प्रॉब्लम है कि सपोज अगर आपके पास है, प्रॉब्लम ये है कि यही वाला प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आपको देखना है कि अगर किसी के 375 या उससे ज्यादा मार्क्स आते हैं, 375 का मतलब क्या होता है, 500 में से अगर 500 में से 375 आए तो इसका मतलब होता है 75%। अगर किसी के 75% या उससे ज्यादा आते हैं तो आपको इसमें प्रोग्राम में एक चीज और प्रिंट करनी है कि यू हैव गॉट ए डिस्टिंक्शन, और नहीं आते तो नहीं प्रिंट करना, ठीक है। तो केस है यहाँ पर, है ना।
अगर आएंगे तो ही प्रिंट करना है, नहीं आते तो नहीं प्रिंट करना। तो इस चीज को कैसे करते हैं ना, तो ये वाली लाइन है, इस लाइन के नीचे क्या 2 लाइनें लिखनी है आपको ना, जो ये पहले वाला आपने प्रोग्राम बनाया, इसी प्रोग्राम के नीचे 2 लाइन आपको लिखनी है। क्या लिखनी है? इफ स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 375, है ना, और यहां पर ये सेमी कॉलन लगा देना, ये सेमी कॉलन। अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो यू हैव गॉट ए डिस्टिंक्शन, और अगर नहीं होंगे तो वो नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अगर आपकी जो आउटपुट विंडो है, आउटपुट विंडो में आपने ये प्रोग्राम रन कराया, आपने टोटल मार्क्स डाले 500, फिर आपने डाला 376 डाल दिया, तो इसने क्या चेक करा कि स्टूडेंट के मार्क्स क्या इससे ज्यादा हैं? हाँ ज्यादा हैं। तो ये क्या करेगा, पहले तो परसेंटेज तो प्रिंट ही कर देगा, योर परसेंटेज इज दिस। उसके बाद ये चेक करेगा कि अगर 305 से ज्यादा है तो यू हैव गॉट ए डिस्टिंक्शन, और अगर नहीं है तो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आपको बनाना है आज, और बना के सबमिट करना है आज मेरे को। ठीक है, और थोड़ा सा सीरियसली ले लो मेरे को, और नहीं लो ऐसे हंसने में तो मत।